Hi, hello everyone. How are you all? Welcome to the class. So, today in this session, we will begin with a new chapter of NCERT Class 10, chapter number 1, Real Numbers. So, आज हम इस सेशन में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं. सो इस चैप्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नंबर्स are very important in our daily life. So we will use numbers to calculate, to measure, to compare the things. So numbers are very important in our daily life. So इसी numbers के बारे में अब आज हम जानेंगे. So my dear students, let's get started. Okay, so here what are real number? First हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर रियल नंबर्स. ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. वी विल से रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ये रियल नंबर्स हमारे सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं. सो फर्स्ट you have to understand what are rational and what are irrational number. Okay, रैशनल और इरेशनल नंबर्स जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको इजीली रियल नंबर समझ आ जाएगा. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो कम हियर. First, in the classification of numbers, natural number, whole number and integers. First, natural number. What are natural numbers? Natural numbers हमारे positive numbers हैं जो 1 से start होते हैं. Very easy, my dear students. Here, जो भी numbers 1 से start होते हैं, all numbers we called as a natural number. All positive numbers we called as a natural number. यहाँ 1 से start होने वाले सारे numbers हमारे natural numbers हैं. Okay, then come to the next type of numbers, whole numbers. whole numbers are also a positive numbers. whole numbers भी हमारे सारे positive numbers हैं जो in addition इसमें zero आके include हो जाएगा. that means the numbers starts from 0 to infinity. We call those numbers are called whole numbers. Okay, whole numbers एंड नेचुरल नंबर्स में स्मॉल डिफरेंस इतना ही है कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से. ओके, देन कम टू द इंटीजर्स. इंटीजर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड ऑल पॉजिटिव नंबर्स and 0 and also negative numbers. So here all positive numbers means here all natural numbers. Okay, यहाँ integers में हमारे सारे natural numbers भी आ जाएंगे. 0 that means all whole numbers भी integers में आ जाएंगे और all negative numbers also. सारे negative numbers भी हमारे integers में आएंगे. Okay, so these numbers we called as a integers. So now come to the rational number. Rational numbers क्या है? Rational numbers are the numbers which can express in the form of p by q. Rational numbers हमारे ऐसे numbers हैं जो भी numbers आप p by q form में express कर पाओगे. Those numbers we called as a rational number. Okay, that means the condition is q is not equal to 0. Okay, rational numbers are the numbers which we can express in the form of p by q. Condition is q is not equal to 0. That means, see here, all fractions comes under rational numbers. That means हमारे सारे fractions number, for example 5/2 हमारा p by q form में है ना. So ये नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा. ओके, दैट मीन्स जो भी फ्रैक्शंस आप लिखोगे सारे फ्रैक्शंस हमारे रैशनल नंबर हैं. और फॉर एग्जांपल टेक अनदर एग्जांपल 2/0. जब भी आप डिनोमिनेटर में 0 लिखते हो ये हमारा नॉट डिफाइंड नंबर है. सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. दैट मीन्स q डिनोमिनेटर में q 0 नहीं होना चाहिए. ओके, this we called as a rational number. And all decimal numbers are also a rational numbers. सारे हमारे decimal numbers rational number है. But the condition is decimals number क्या condition क्या है?
There are two types of decimal numbers. One is terminating decimal and another one is non-terminating decimal. In terminating decimal, जब भी आप डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर लिखते हो वो हमारा एंड होना चाहिए. डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स अगर एंड हो रहे हैं दैट वी कॉल्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं. ओके. एंड इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर एग्जांपल 2.333333. ओके. जब भी आपका डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा रिपीटेडली कंटिन्यू हुआ तो दैट मीन्स हियर सी हियर 2.33333 repeating continuous numbers we called as a rational number. Okay, this is non-terminating repeated number is called rational numbers. Okay, these are the rational numbers and all natural numbers are rational numbers. How? Take one example. Here 4 is a natural number. No, 4 हमारा natural number भी है, whole number भी है और integers भी है. But how it is a rational number? जब भी हमारा नंबर कोई नंबर नेचुरल और होल और इंटीजर नंबर है, जब भी डिनोमिनेटर भी में कुछ भी नहीं है तो हम अपॉन में 1 लिखते हैं. सो इट बिकम अ इन द फॉर्म ऑफ p by q. ये p by q फॉर्म में आ गया ना. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ऑल नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. सारे नेगेटिव नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स ही हैं. ओके. सो देन कम टू द इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स are the numbers which we can't express in the form of p by q. जो भी नंबर आप p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ऐसे नंबर्स हमारे irrational नंबर हैं. ओके. सो the condition is q is not equal to 0. Here for example pi is a irrational number. The value of pi is 22/7. सो हमारा पाई का वैल्यू है 22/7. ये तो p by q फॉर्म में है. बट जब भी आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो हमारा वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.1415 समथिंग. सो हियर कंटिन्यू होता जाएगा. जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स नॉन रिपीटेडली कंटिन्यू होते हैं तो ऐसा नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर होता है. ओके. सो टेक अनदर एग्जांपल √2. √2 is a irrational number. Why? Because जब भी अंडर रूट में हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं सो ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे. ओके. दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स नॉन रिपीटेडली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे. सो अंडर रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं. ओके. सो दीज ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ये सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स ये सारे मिलके हमारे रियल नंबर्स होते हैं. इज इट क्लियर नाउ माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर द combination of rational and irrational numbers. Okay, let's move to the next one. Next is prime number. Prime numbers. So what are prime numbers? Prime numbers are the number which exactly divided by 1 or itself. So what will we say? प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर हैं जो exactly 1 से डिवाइड होंगे या तो उसी टेबल से डिवाइड होंगे. ओके. द numbers which exactly divided by 1 or itself. 1 and itself. So prime numbers are the numbers which exactly divided by 1 or itself. ऐसे numbers जो
या तो वो टेबल 1 में आएंगे या तो उसी टेबल में आएंगे. सो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 2. Number 2 is a prime number because it has only two factors. See, the factors of 2 is 1 and 2. Here, number 2 या तो 1 में डिवाइड होगा या नंबर 2 में डिवाइड होगा और किसी टेबल में ये नंबर नहीं आएगा. सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स वी कॉल्ड एज ए प्राइम नंबर. राइट डाउन द नेक्स्ट प्राइम नंबर is 3. 3 is also a prime number because it also has a two factors, that means 1 and 3. And number 4, next number 4 is a prime number. No, it is not a prime number because 4 have more than two factors, that is 4 हमारा टेबल 1 में भी आता है और टेबल 2 एंड टेबल 4. That's why 4 is not a prime number. Okay, then come to the next prime number is 5. 5 is also a prime number because it is also has a two factors. Then 6 is not a prime number because 6 have more than two factors. Then 7 is also a prime number, so on. Okay, these are the prime numbers. Next, come to the next is composite numbers. Composite numbers, very simple. Composite numbers are the numbers other than prime numbers. जो भी prime numbers हैं उसे छोड़ के सारे numbers हमारे composite number हैं. That means the number which have more than two factors we called as a composite number. For example, 4 has an more than two factors, so that's why 4 is a composite number. Next, 6 is also a composite number because 6 has more than two factors. And then 8 is also a composite number, so on. Okay, composite numbers are the numbers which has more than two factors. Okay, so here come to here prime number 2 is a only even prime number. 2 हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. ओके, सो बाकी के आने वाले सारे हमारे प्राइम नंबर्स कोई भी इवन नंबर नहीं होते. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. विच इज द इवन प्राइम, ऐसा पूछे तो आपको 2 is a even prime. Okay, next is co-prime numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers are any two numbers whose common factor is 1. Okay, ऐसे दो कोई numbers जो जिसका common factor that means HCF हमारा 1 होगा, ऐसे numbers को हम co-prime numbers बोलते हैं. Okay, for example 3 and 5. Here the factors of 3 are 1 and 3. No? Then the factors of 5 are 1 and 5. Here HCF is only 1. No, the common factor is 1. No, so that's why HCF is equal to 1. So these type of numbers we called as a co-prime numbers. Okay, so here प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है. कोई भी कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, प्राइम विथ कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं. दो ऐसे नंबर्स जिसका HCF हमें 1 आना चाहिए. सो ऐसे नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग हियर, 1 and 0, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिसे हम ना तो प्राइम नंबर में कंसीडर करेंगे और ना तो कंपोजिट नंबर में कंसीडर करेंगे. ओके, 1 and 0 is neither a prime number nor a composite number. Okay, this is one of the important point, you have to keep it in your mind. Okay, the next is fundamental theorem of arithmetic. Okay, very important theorem and very simple theorem, my dear students. See here what it says: every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. ये क्या कह रहा है, हर composite number को हम प्राइम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, इससे टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस वन. ये
फॉर एग्जाम्पल एक कंपोजिट नंबर ले लो, दैट इज टेक 8. 8 इज ए कंपोजिट नंबर. जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा. सी हियर, फैक्टराइज दिस वन. सो टेक अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2. 2 से हमारा 8 नंबर 8 कैंसिल होगा. 2 4 ज़ा 8. अगेन नंबर 4 हमारा 2 के टेबल से कैंसिल होगा, तो अगेन डे का नंबर 2 टू कैंसिल इट. 2 2 ज़ा 4. द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज हियर 2 इंटू 2 इंटू 2. 8 कंपोजिट नंबर का हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, यही यहाँ हमारे थियरम में कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल. टेक नंबर 10. 10 इज ए कंपोजिट नंबर. नो, 10 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है. डू द फैक्टराइजेशन. सो 2 5 ज़ा 10. ओके, जब भी लास्ट में आपका प्राइम नंबर आएगा तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे. ओके, सो द प्रोडक्ट इज 2 इंटू 5. नंबर 10 का हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 इंटू 5. ओके, दिस इज द this line says the every composite number can be expressed as a product of prime. यही कह रहा है कि जब भी आप composite number लोगे तो हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, देन एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. दैट मीन्स यूनिक मीन्स हियर 10 का फैक्टराइज नंबर हमारा 2 इंटू 5 ही होगा. ओके, अगर आप कोई और कंपोजिट नंबर लोगे तो वो कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा. ओके, 2 इंटू 5 मीन्स एवरी टाइम दैट मीन्स 10. ओके, दिस वी कॉल्ड एज ए unique. And then apart from the order in which the prime factor occur, यहाँ जब भी आप प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो ऑर्डर 2 इंटू 5 ही लिखना ज़रूरी नहीं है. आप 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो. ऑर्डर वाइज आप किसी तरह भी चेंज कर सकते हो, बट नंबर कांट चेंज. ओके, this is the fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of prime. Okay, this factorization is unique apart from in which the prime factor occur. Okay, my dear students, this is clear, no? So now we'll move to the next. Next topic is HCF and LCM. Okay, HCF is highest common factor and LCM is lowest common multiple. Okay, HCF means here common factors. जब भी आप given numbers के HCF निकालते हो तो हमेशा HCF हमारा गिवन नंबर से छोटा होता है. बिकॉज जब भी आप नंबर्स के फैक्टर्स लिखते हो, फैक्टर्स मीन्स व्हाट, फैक्टर्स हमेशा हम गिवन नंबर्स कौन से टेबल में डिवाइड होगा वही नंबर तो हम लिखते हैं ना. सो हमेशा फैक्टर्स हमारे गिवन नंबर से छोटे होते हैं. हियर आल्सो जब भी आप HCF फाइंड आउट करते हो तो हमारा गिवन नंबर से आंसर हमारा हमेशा छोटा ही आएगा. ओके, देन कम टू द LCM. LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. हियर मल्टीपल्स मीन्स गिवन नंबर से हमेशा आंसर क्या होगा, बड़ा होगा. ओके, ये टू फाइंड HCF. जब भी आप HCF फाइंड आउट करते हो तो यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं कि फाइंड द HCF ऑफ फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20. फॉर एग्जाम्पल 6 और 20 का HCF निकालना हो तो हमें 6 का सेपरेट हम डिवाइड करेंगे. 6 को प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे. 6 2 से 2 3 ज़ा 6. सो हमारा 6 का फैक्टर्स हो गए. 6 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे, 2 इंटू 3. ओके, देन फैक्टराइज 20 भी हमारा 2 के टेबल से कैंसिल होगा तो 2 10 ज़ा 20. अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10. सो यहाँ प्राइम नंबर आ गया. जब भी आप प्राइम नंबर आएगा तो यहीं पे आपको स्टॉप करना है. ओके, सो यहाँ 20 के फैक्टर्स क्या हुए हमारे, 20 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके, अब इस दो नंबर्स में हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं ये चेक कीजिए. 2 और 2, इधर भी 2 है तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2. तो हमारा HCF आंसर क्या है, HCF इज 2. ओके, देन यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि क्या है, 20 और 2 से हमारा आंसर हमेशा यहाँ छोटा आएगा. ओके,
देन कम टू द एलसीएम. हाउ टू फाइंड एलसीएम? इसी नंबर्स को हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, 6 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों को साथ में फैक्टराइज करेंगे. 6 और 20, ये 6 और 20 हमारे 2 के टेबल्स में कैंसिल हो जाएंगे. तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20. अगेन 3 हमारा प्राइम नंबर है तो ये किसी नंबर में कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा. तो 10 हमारा 2 के टेबल में कैंसिल होगा. सो 2 3 राइट डाउन एज इट इज. 2 5 जा 10. सी हियर 3 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, या आप टेबल 3 लेके इसको कैंसिल करोगे. 5 राइट डाउन एज इट इज, और टेक 5 1 राइट डाउन एज इट इज, एंड 5 1 जा 5. सो हमारे यहाँ एलसीएम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ओके, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो आंसर क्या आया हमारा, मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. सो हमारा एलसीएम का आंसर क्या आया, 60. सो दिस इज द वे वी फाइंड HCF एंड एलसीएम. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होता है. तो आप HCF और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. सो ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख के समझ लीजिए. आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी. ओके, अंटिल दैट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय.